Okay, page number 95, lesson 9, the encounter. Encounter, to meet someone unexpected. Okay, किसी से बिना ही उम्मीद किए अचानक से मिल जाना. It was late in the afternoon. दोपहर में अब बहुत लेट हो रहा था. Sunset was about 3 hours away. और सूरज डूबने में लगभग 3 hours बाकी थे. Lying on a grassy mound. Mound a small hill. छोटी सी पहाड़ी. घास की छोटी सी पहाड़ी पर लेटे हुए मेघा was the slow sailing clouds above her sometime. Okay, watched means देख रही थी. क्या देख रही थी? Slow sailing clouds. धीरे धीरे तैरते हुए बादलों को. Okay. A light breeze stirred the pages of her exercise book. Breeze, wind, a small wind, छोटी सी हवा के झोंके ने उसके एक्सरसाइज बुक के पेज को उल्टा या पलट दिया. मेघा, मैम कौन सा लेसन? लेसन 9, the encounter. मैम पढ़े बुक में? कोर्स बुक. You all have to be visible to me, okay? Every time I tell the same thing in the classroom. If you are taking class, just be visible to me. Megha, hearing her name. Hearing means सुनना. और अपने नेम को सुनते ही she sat up with a start and turned around to see her friend Sneha. वो अचानक से उठकर बैठ गई और turn around to move about. पीछे घूमकर उसने अपनी फ्रेंड नेहा को देखा. Aren't you going home? क्या तुम घर नहीं जा रही हो? Don't you have to go to Miss Sophia at 5 o'clock? क्या तुमको 5 बजे मिस सोफिया की क्लास में नहीं जाना? नेहा asked her. नेहा ने किससे पूछा? मेघा से. There were 2 friends. Okay. No, not yet. अरे नहीं, अभी तो नहीं. Not yet, अभी नहीं. Okay. If I go home now, Mom will tell me to eat something and do my homework right away. Right away means just now. ठीक अभी. अगर मैं वापस घर जाऊंगी तो मेरी मम्मी मुझसे तुरंत ही ब्रेकफास्ट करने के लिए और खाना खाकर होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बोलेंगी. And what's wrong with that? नेहा ने क्या पूछा मेघा से? क्या इसमें क्या गलत चीज है? If your mother asks immediately to finish food and write homework, it is not wrong thing. Okay? Megha made a face at Neha. मेघा ने बड़े गुस्से से नेहा की तरफ देखा. Okay, I won't say anything. मेघा ने बोला, नेहा ने बोला, चलो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी. You stay here and daydream. Stay, रुक जाना. Okay? तुम यहीं रुको and daydream, दिन में सपने देखना. Okay? नेहा ने अपनी फ्रेंड मेघा को बोला कि तुम यहीं रुको और डे ड्रीम करो. आई एम गोइंग होम. मैं तो घर जा रही हूँ. नेहा stormed off angrily. Stormed off means walked away with heavy footsteps. भारी भारी कदमों के साथ गुस्से से वापस जाना. नेहा stormed away angrily. नेहा जो है बहुत गुस्से से वापस चली गई. Leaving मेघा to continue what she loved doing. और उसने मेघा को वैसे ही छोड़ दिया जो मेघा करना चाह रही थी. Gazing at the sky and watching the clouds make different shapes. मेघा क्या देखना पसंद कर रही थी? Gazing. Gazing means to stare. continue देखना. क्या देखना? Watching the clouds. Clouds को देखना. Clouds उस समय क्या कर रहे थे? The clouds were making different shapes. Okay? वो अलग अलग shapes में cloud होते हैं ना? Sometimes you must have seen clouds in the sky with different shapes. Megha was also doing the same thing. She was loving and she loved to see those shapes. There is nothing wrong with a little daydreaming, Megha called out. मेघा ने धीरे से आवाज निकाली कि अरे दिन में सपने देखने की क्या गलत बात है? दिन में सपने देखना कोई गलत चीज नहीं है. However, there was no one around to listen to her. जबकि मेघा के चारों तरफ उसको सुनने वाला कोई भी नहीं था. Everything grew quiet. Quiet means बिल्कुल शांत हो जाना.
वहां पर जितनी भी चीजें थी वो सब शांति थी। Why? Because there was no one around मेघा। मेघा के चारों तरफ कोई नहीं था। Okay? Even the school building in the distance looked empty and lonely. What is the meaning of empty? खाली खाली, completely vacant, lonely, alone, बिल्कुल अकेली। जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो भी बिल्कुल खाली और अकेली दिख रही थी। मेघा turned her attention to her exercise book. अचानक से मेघा का ध्यान किधर गया? हर एक्सरसाइज बुक, उसकी एक्सरसाइज बुक की तरफ। The homework question made her smile disappear. Disappear means to vanish, गायब हो जाना। और जैसे ही मेघा ने अपने क्वेश्चन को देखा, उसकी स्माइल जो है वो गायब हो गई। Earlier she was happy and she was loving to see the different shapes of the sky, but when she saw her exercise book with a question, her smile disappeared. उसकी जो स्माइल थी वो गायब हो गई। It was a question asking her to write an essay about an amazing experience. What was the question in her exercise book? क्वेश्चन ऐसा था कि उसको कोई अमेजिंग, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आश्चर्यजनक वाला जो एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में ऐसे लिखना। ओके? शी पिक्ड अप बुक। पिक्ड अप मींस उठाया, बुक। उसने अपनी बुक को उठाया। थॉट फॉर अ बॉय। थिंक मींस सोचना, थॉट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ थिंक। ओके? थॉट फॉर अ व्हाइल। व्हाइल मींस फॉर लिटिल बिट, थोड़ी देर के लिए। उसने थोड़ी देर के लिए अपनी बुक उठाई, सोचा। Then she slammed it shut and laid. Slammed means पटक कर रख देना। उसने अपनी बुक को पटक कर बंद किया और घास के ऊपर वापस रख दिया। Homework. She became angry. कौन करेगा homework? She grumbled around. Grumbled means showed unhappiness or something. उसने complain की, यार जोर से। Homework. She watched the clouds go by. और वो फिर से क्या देखने लगी? आते जाते बादलों को। Okay? One looked like an elephant in a skirt. One cloud was looking like elephant in a skirt. एक जो बादल का शेप था उसको ऐसा लगा जैसे किसी एलिफेंट ने स्कर्ट पहना हो। Okay? She thought, उसने सोचा। It made her giggle. इससे उसको अच्छी सी हंसी आई, स्माइल आई। Another looked like a butterfly dancing with a dragonfly. और दूसरा बादल उसको कैसा दिखा? जैसे कोई बटरफ्लाई ड्रैगनफ्लाई के साथ डांस कर रही हो। One even looked like a dog. और एक क्लाउड कैसा दिखा? Looked like a dog with a giant. What is the meaning of giant? Giant means a very big, बहुत बड़ा। और एक उसको लगा कि बहुत बड़ी सी पूंछ के साथ एक डॉग है। She continued to amuse. Amuse means to entertain, मजे ले। ठीक है? उसने अपने आप को entertain करके रखा बादलों को देखते हुए। Then she began to doze. Doze means nap. धीरे धीरे झपकी आती है ना, when you lie down on a garden, you feel sleepy sometimes, no? So that nap is called doze. वो जो हल्की सी नींद आती है, short sleep, उसको doze बोलते हैं। Clear? तो उसको हल्की सी नींद आना शुरू हो गई और वो हल्की उसकी झपकी लग गई। That was when she saw it. तब उसको क्या दिखा? A bright streak of gold darted across the sky towards the woods. उसको bright means चमकदार। ओके? Streak, streak, एक बड़ा सा धब्बा। Gold darted मतलब उसमें कैसे निशान पड़े हुए हैं? गोल्डन कलर के। ओके? गोल्ड darted। Across means इस पार से उस पार चले जाना। जैसे उसकी नींद लगी, उसको दिखा कि एक गोल्डन कलर का कोई डॉटेड गोल्ड कलर का कोई राउंड शेप का धब्बा जो है वो किस तरफ गया? स्काई टुवर्ड्स द वुड्स। वुड्स मींस फॉरेस्ट, जंगल। ओके? स्काई से जंगल की तरफ कुछ गया है। She sprang up and wondered what it could be. Sprang means उछलकर उठ जाना। Spring means उछलना। Sprang up उछलकर उठ जाना। वो उछलकर उठ गई। Wondered means आश्चर्य फील करना। ओके? शॉक हो जाना। What it could be, ये क्या हो सकता है? वो सोचती है कि ये चीज क्या हो सकती है। She started to imagine all kinds of things. Imagine means to think about the things. Okay? चीजों की कल्पना करना। उसने बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना शुरू किया। ये क्या हो सकता है? She thought of a fallen star
उसने क्या सोचा कि ये जरूर गिरता हुआ तारा हो सकता है, एंड वंडर्ड हाउ प्रिटी इट वुड लुक, और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर ये तारा ऊपर से नीचे गिरेगा सितारा तो कितना खूबसूरत होगा। ओके, शी ऑल्सो वंडर्ड इफ इट वाज अ फेरी, फिर उसने सोचा कि ये भी हो सकता है कि वो एक फेरी हो, कोई परी हो सकती है। इन अ ब्यूटीफुल वन इन अ व्हाइट एंड गोल्ड गाउन, यानी बहुत खूबसूरत सी सफेद और गोल्डन कलर की फ्रॉक पहने हुए, गाउन पहने हुए परी हो सकती है। और इवन अ फायर स्पिटिंग ड्रैगन, फायर मींस आग, स्पिटिंग मींस उगलना या फूटना। ओके, या तो फिर ये ड्रैगन हो सकता है जिसके मुंह से आग निकल रही हो। She ran off towards the woods. Ran off मतलब भाग जाना, towards की तरफ, woods जंगल, और फिर वो जंगल की तरफ भागती है। The woods were scary. Scary means बहुत डरावना। जंगल कैसा था? डरावना। जंगल बहुत डरावना था। इन द डार्कनेस, डार्कनेस ग्लूमी, अंधेरा वाला, और अंधेरे में द ट्रीज लुक लाइक दे वर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। अंधेरे में ट्रीज बिल्कुल शांत खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे वो कुछ किसी घटना के होने का इंतजार कर रहे थे। दे वर वेटिंग फॉर एनी इंसिडेंट टू हैपन। ओके, द डेड लीव्स क्रंच, क्रंच मींस कुचल जाना, एंड क्रैकल मतलब चरचराने की आवाज करना, अंडर हर फीट, और जितनी फॉरेस्ट में ड्राई लीव्स थी वो उसके पैरों से कुचलकर क्रैकल हो रही थी। शी वेंट ऑन, लेकिन फिर वो चलती गई, wanting to find out what had fallen from the sky, because she wanted to find out, वो जानना चाहती थी कि बादल से जो चीज गिरी है वो क्या है। ओके, फाइनली शी सॉ, अंत में उसने क्या देखा? अ शाइनी, शाइनी मींस चमकदार, राउंड मींस गोल, ओके सर्कल, इन साइज ऑफ स्मॉल कार, अंत में उसने क्या देखा? एक चमकदार छोटी सी कोई गोल आकृति, कैसी? जैसे कि वो एक छोटी सी कोई कार, जस्ट लाइक अ स्मॉल कार। ओके, एलियन, शी वंडर्ड, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एलियन है। शी स्टिप्ड मींस आगे बढ़ जाना, वो आगे बढ़ी, बट स्टॉप सडनली, लेकिन वो अचानक रुक जाती है। She heard something behind her. Behind means on the back side, पीछे साइड, पीछे साइड से उसने कुछ सुना। It was the sound of leaves crumbling under feet. उसको ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी के पैरों के नीचे से खिंचली जा रही है। Who's making this sound? They were footsteps. इसको footsteps means what is the meaning of footsteps? मैम चलने की, कदमों की आवाज। ओके, पीछे से उसको फुट स्टेप सुनाई दे रहे थे, एंड दे वर गेटिंग क्लोजर, और पीछे की जो फुट स्टेप है वो उसके पास आ रहे थे। गेटिंग क्लोजर, क्लोजर मींस और पास आना या नजदीक आना। He looked back and saw a terribly ugly creature. Terribly मतलब बहुत भयानक, ugly गंदा, creature मतलब प्राणी या जीव, with scaly green grey skin, scaly मतलब ड्राई फ्लैकी, ग्रे स्किन। अचानक से उसने देखा कि बहुत ही भयानक गंदा सा ग्रे कलर की सूखी सूखी स्किन वाला कोई जीव उसके पीछे से था, आ रहा था। Perched high on its head was a blazing red eye. Okay, perched placed on the top of something. उसके ऊपर क्या कुछ रखा हुआ था? क्या रखा हुआ था? उसके हेड में क्या थी? One blazing red eye, एक अच्छी जलती हुई लाल कलर की आई, आंख थी। Blazing means burning, जैसे आग जलती है ना, in the same kind he had a burning eye on the top of his head. Megha froze, froze means जम जाना, डर के मारे जम जाना। Okay, froze with fear at the sight of the monster. Monster means राक्षस, दानव। Okay, और मेघा ने जैसे ही ये देखा कि वो जो राक्षस है जैसी आकृति धीरे धीरे उसके पास आ रही है, she froze with fear, वो एकदम डर से जम के खड़ी हो गई। She screamed and tried to run. Scream means बहुत तेजी से चीखना, वो बहुत तेजी से चीखती है, and tried to run, और उसको भागने की कोशिश करती है। But it grabbed her. Grab means पकड़ लेना, जकड़ लेना। लेकिन वो जो क्रिएचर था उसने मेघा को जकड़ लिया। Its grey claws scratched her arm. Claw means what is claw? Claw means पंजे। उसने अपने ग्रे कलर के पंजों से मेघा के हाथ में स्क्रैच कर दिया, खरोच दिया।
She fell to the ground and everything went black. और वैसे ही मेघा जमीन पे गिर गई और सारी चीज क्या हो गई, बिल्कुल काले रंग की. When she woke up, जब वो जगी, she found herself lying on the same grassy patch. उसने क्या देखा कि मेघा जो है जैसे उसको ली, then she saw कि वो सेम उसी फ्लेकी पैच पे उसी ग्रास पे लेटी हुई है. हर एक्सरसाइज बुक ले बिसाइड है और उसकी जो एक्सरसाइज बुक है वो उसके बगल में पड़ी हुई है as it is. Okay, it means that the alien was in her dream only. उसने सपने में एलियन देखा था. It was her imagination. What is a dream? She asked herself. उसने खुद से पूछा, अरे ये तो सपना था. The next day during the English class, अगले दिन इंग्लिश की क्लास में मेघा read her essay. उसने अपने essay को पढ़ा. The teacher said, "That's quite an imaginative piece of writing." Okay, तब टीचर ने बोला कि ये तो अच्छा कुछ भी नहीं, आपकी सोचने राइटिंग की शक्ति है, इमेजिनेटिव, ठीक है, आपकी कल्पना शक्ति है कि आप ये लिख सकते हो मेघा. The class clapped for her. और मेघा के लिए सबने तालियां बजाई. Later, when no one was looking, Megha rolled up her sleeve to look at the scratch mark on her arm. Later means बाद में. जब मेघा को कोई नहीं देख रहा था, मेघा ने क्या किया, रोल्ड अप मींस ऊपर की ओर चढ़ाया. स्लीव, अपने शर्ट की स्लीव को ऊपर चढ़ाया. वो क्या देखना चाहती थी, शी वांटेड टू लुक द स्क्रैच मार्क. वो सोच रही थी सही में मेरे हाथ में स्क्रैच मार्क आया है क्या. उसको लगा था कि दैट शी वाज रियली मेड विद एन एलियन. ओके, Yes. okay, so yes, we have completed the explanation part of this lesson. In tomorrow's class, we'll do the exercise of the same test. Okay? Till then, do practice at your home for examination. Bye, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you for the class.